Hello student, welcome to once again in our study channel. Okay, in our previous video we will discuss about the liquid system. In that system we will discuss the Raoult's law. Okay student, and in Raoult's law we discuss also the ideal solution, non-ideal solution, all the deviation like positive deviation, negative deviations, examples of positive deviation, negative deviations, their graphical z presentation, ideal solution graphical z presentation, what is the effect of the Weber pressure. Okay, so now in in this video we are going to start colligative properties. Okay student, this is our second topic. Okay, before starting the Raoult's law we will discuss three type of the system. One is the liquid system in our previous video, other one is the liquid solid system, and third one is the liquid gas system. Okay, in our previous video we discussed in detail liquid plus liquid system. If you are not seen the previous video, first see this video and after that start this video. Okay, so student, in this video we are going to discuss about the liquid solid system. This is a system which is explained by the colligative property. Liquid solid system, first of all we will discuss what is the meaning of liquid solid system. You can see here that the meaning of the liquid solid system, one of the component of the solution is present in the liquid state and the other one is present solid state. Okay, and this will be explained by colligative property. Now the question is arise in your mind, what is colligative property, what is the definition of colligative property, because this is a new word for you all. Okay, so what is the colligative property? Colligative properties are those property which is depending on the number of particle, number of moles, number of ions, number of molecules, like how many number of molecules are present in the solution. It is not depending on the nature, it is not depending the size of the particle, it is not depending the nature of the solution. Am I clear? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कभी भी साइज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि आपने सॉल्यूशन में जो भी कंपोनेंट लिया उसका साइज़ क्या है, उस कंपोनेंट क्या मतलब उस कंपोनेंट का नेचर क्या है. इट इज़ ओनली ऑन डिपेंडिंग ऑन द नेचर. ओके, ये केवल इट इज़ ओनली ऑन डिपेंडिंग ऑन द number of particles. Is that clear? And we will discuss four colligative property in this chapter student. Initially I told you one of the lowering in vapor pressure. इट मीन्स वेपर प्रेशर में क्या चेंज आता है जब हम सॉलिड को डालते हैं सोल्यूशन में. सेकेंड वन इज़ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन मीन्स बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है. ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या इफेक्ट पड़ता है. थर्ड वन इज़ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का घटना. एंड फोर्थ one is osmotic pressure. In this video, we will discuss all the example which is related to our daily life and which is affected by this phenomena and the numerical portion and the first colligative property, lowering in vapor pressure. Okay, so colligative property क्या है, इसमें ये चारों colligative property most important है. यहाँ से हमेशा एक numerical बनता है स्टूडेंट, चाहे competition basis पे हम बात करें या फिर हम अपने CBSE बोर्ड की बात करें. ओके, सो नाउ व्हाट इज़ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. हम पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं. व्हाट इज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया. प्रॉपर्टीज़ विच इज़ डिपेंडिंग ऑन साइज, प्रॉपर्टीज़ विच इज़ डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, विच इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन नेचर, साइज ऑन सोल्यूशन पार्टिकल. नेचर पे साइज पर डिपेंड नहीं करती. दीज आर डिपेंडिंग ओनली ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल. लाइक वी कैन से दैट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, ये प्रपोर्शन का साइन है, ये थोड़ा सा अल्फा जैसा बन गया, प्रपोर्शन का साइन है. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पार्टिकल, number of moles and number of ions. Am I clear? Now the second thing is that colligative properties inversely proportional, ये भी proportion का साइन है. inversely proportional 1 upon gram molecular mass. It means inversely proportional to the gram molecular mass. Okay, यानी किसी भी चीज़ का जितना हम मॉलिकुलर मास बढ़ाएंगे, कोई मॉलिक्यूल अगर हमने ज़्यादा मास का लिया है तो उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगी. ठीक है. नाउ द सेकेंड थिंग, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोवरिंग इन वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर कैसे लो होता है, लिसन केयरफुली. देखो, सबसे पहले तो हम बेसिक समझते हैं इसके पीछे का बेस क्या है. देखो, if we are adding one of the non-volatile substance in the solution, non-volatile substance mean which one is not volatile. It means if it is not volatile there will be no vapor pressure of that substance. अगर हमने कोई कंपोनेंट सॉलिड डाला है और वो सॉलिड ऐसा है कि इट इज़ नॉट वॉलेटाइल, वो वॉलेटाइल नहीं है. सपोज वी आर एडिंग द सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट इन वाटर. ठीक है, एंड देन वी स्टार्टेड द बॉयल ऑफ दैट वाटर.
ठीक है. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर विल बी राइज एंड द वेपर प्रेशर विल बी डिक्रीज बिकॉज द वेपर प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट. वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. किसी चीज़ का बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ेगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉइलिंग टेम्परेचर? यू नो दिस थिंग. A temperature at which the atmospheric pressure becomes to the vapor pressure means जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो गर्म करते समय उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जब आउटर सराउंडिंग के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो वो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर कहलाता है. उस टेम्परेचर पर वो लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है. अब जैसे ही हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने पर वो लिक्विड के बीच का स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उस कंडीशन में क्या होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो इंक्रीज़ हो जाता है बट जो वेपर प्रेशर होता है, ठीक है, वो डिक्रीज़ हो जाता है. रीज़न क्योंकि जो सॉलिड आपने डाला है उसका तो कोई प्रेशर है ही नहीं, वो तो कोई वेपर बनाएगा ही नहीं. केवल वेपर कौन बनाएगा? आपका सॉल्वेंट पार्ट बनाएगा. ठीक है, एम आई क्लियर? सो देखो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर आप समझ गए होंगे. मतलब वेपर प्रेशर का कम होना. तो ऑन एडिंग नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सोल्यूट इन सोल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेस नॉन एज लोवरिंग इन वेपर प्रेशर. इसी को क्या कहा जाता है? लोवरिंग इन वेपर प्रेशर. नाउ लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ एडेड नॉन वॉलेटाइल सॉलिड इन सोल्यूशन. इट मीन्स जितना अमाउंट आप डालेंगे, जितना अमाउंट आप नॉन वॉलेटाइल की डालेंगे, ठीक है, नॉन वॉलेटाइल सॉलिड की, सोल्यूट की, उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर डिक्रीज़ होता जाएगा. ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही इंक्रीज़ होता जाएगा. चीज़ को बॉयल होने में उतना ही टाइम लगेगा. सपोज एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. हम एक 1 ग्लास वाटर लेते हैं एक कंटेनर में और सेकंड कंटेनर में भी 1 ग्लास वाटर लेते हैं बट उसमें ½ टीस्पून सॉल्ट डाल देते हैं. दोनों को बॉयल करने के लिए गैस पर रख देते हैं सेम टाइम पर. हम देखेंगे जो सिंपल वाटर है जिसमें हमने कोई भी सोल्यूट ऐड नहीं किया वो जल्दी ही बॉयल हो जाएगा. ठीक है, जबकि जिसमें हमने सॉल्ट ऐड कर दिया उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा. ठीक है, यानी कि उसको ज़्यादा टाइम लगेगा बॉयल होने में. ठीक है, तो उसकी वेपर भी लेट बनेंगी. इट मीन्स उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया उसी टाइम में. ठीक है, नाउ द लोविंग वेपर प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाय del P इक्वल्स टू P नॉट A माइनस पी एस. ओके, द मीनिंग ऑफ पी एस आप चाहें तो पी एस की जगह यहाँ पी ए भी लिख सकते हैं बिकॉज आपको पता है पी एस होता क्या है? पी एस होता है पी ए प्लस पी बी. और क्योंकि हमने जो सेकेंड कॉम्पोनेंट लिया है दैट इज़ नॉन वॉलेटाइल सॉलिड, इट मीन्स अगर वो नॉन वॉलेटाइल सॉलिड है तो मतलब उसका कोई वेपर प्रेशर ही नहीं है. इन दैट कंडीशन पी बी इक्वल्स टू जीरो. इफ़ पी बी इक्वल्स टू जीरो देन पी एस इक्वल्स टू पी ए एंड वी कैन राइट, हम ये भी लिख सकते हैं del P इक्वल्स टू P नॉट A माइनस पी ए. इसे यहाँ पर ये भी लिखा जा सकता है. ओके, हियर del P लोवरिंग इन वेपर प्रेशर. del P क्या है? वेपर प्रेशर में कितनी कमी आ रही है, कितना चेंज आ रहा है. ठीक है, P नॉट A वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉम्पोनेंट यानी सॉल्वेंट का. पी एस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, इसे हम पी ए से भी डिनोट कर सकते हैं, मैंने जैसा आपको समझाया. ओके, नाउ व्हाट इज द सेकेंड थिंग? वी कैन राइट del P P नॉट A माइनस पी एस. ओके, अब जैसे कि आप देख ही रहे हैं मैंने यहाँ पर लिखा है, हमें सबको पता है पी एस क्या होता था. मैंने पहले भी बताया था आपको पी एस क्या था. ठीक है, पी एस होता था हमारा P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी. इट इज़ अकॉर्डिंग टू द डॉल्टन लॉ. ठीक है, डॉल्टन का जो पार्शियल प्रेशर लॉ हम पढ़ के आए थे कि किसी भी सिस्टम में जितने भी कंपोनेंट होते हैं उन सब का प्रेशर का सम कर दीजिए, अलजेब्रिकल सम, उस सिस्टम का प्रेशर उसके इक्वल होता है. तो वही हम यहाँ लगा रहे हैं. अब एज वी नो एक्स बी तो जीरो होगा. क्यों? क्योंकि हमने बता दिया है वेपर प्रेशर ऑफ कॉम्पोनेंट बी बिकम्स जीरो बिकॉज इट्स अ नॉन वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट. ओके, तो हम ये लिख सकते हैं पी एस इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए. इसे मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1. नाउ सी, अब जो हमारे पास पी नॉट ए था अगर मैं इसे यहाँ ले जाऊँ तो इट्स बिकम्स पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट ए इक्वल्स टू एक्स ए. ओके, एंड वी नो वेरी वेल एक्स ए प्लस एक्स बी equals to 1. It means mole of component A plus mole of component B becomes 1.
ठीक है, हमें पता है टोटल मोल जो होते हैं, सम मोल फ्रैक्शन जो होती है वो 1 के बराबर होती है किसी भी सॉल्यूशन की, किसी भी सिस्टम की। यानी आप चाहे उसमें कितने ही कंपोनेंट डाल दीजिए, कंपोनेंट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस जितने भी हो इनफाइनाइट, सबका सम 1 के बराबर होता है। अब क्योंकि मुझे यहाँ पर वेपर प्रेशर में जो लोवरिंग आ रही है उसका रिलेशन बैठाना है किसके साथ, कितना अमाउंट मैंने उसमें सोल्यूट डाला कि उसमें कितना लोवरिंग प्रेशर हुआ, मुझे ऐसे रिलेशन बैठाना है। इट मीन्स मुझे एक्स बी के साथ रिलेशन चाहिए, और अभी तक मेरे पास एक्स ए आ रहा है स्क्रीन पर, दिख रहा है आपको। मुझे इसे एक्स बी में चेंज करना है, तो मेरे पास एक ऑप्शन है, मैंने कर दिया एक्स ए इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बी, और इस चीज़ को मैंने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में। दिख रही है आपको इक्वेशन 1, ये रही इक्वेशन 1 है ना। अब यहाँ देखें आप, जैसे ही हम पुट करते हैं तो पी एस इज इक्वल्स टू पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी, ठीक है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा था हम ऐसे लिख सकते हैं, पी एस इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी, ठीक है। देखिए इस पॉइंट को मैं उठा के इस साइड ले जा रही हूँ और पी एस को हम इस साइड ला रहे हैं। इट मीन्स पी नॉट ए एक्स बी इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी एस, ठीक है। अब ये जो हमारा पी एस पी ये जो हमारा पी वाला टर्म दिख रहा था आपको, है ना, जो मैंने अभी लिखा था, उसको मैं यहाँ डिवाइड में ले आई हूँ बस। तो यही चीज़ मेरी किसके बराबर हो गई, पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट ए इक्वल्स टू एक्स पी। ये जो पूरी टर्म है डेल पी, इसे हम लिख सकते हैं डेल पी अपॉन पी नॉट ए। इसे कहा जाता है रिलेटिव लोवरिंग इन प्रेशर, लोवरिंग इन प्रेशर दैट इज डेल पी, ओके। रिलेटिव लोवरिंग प्रेशर ये क्या है, डेल पी अपॉन पी नॉट ए। एम आई क्लियर स्टूडेंट। और एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड सोल्यूट। नाउ वी विल सी द ग्राफ, क्या चीज़ है, ग्राफ में कैसे समझेंगे इस चीज़ को। तो आप देखें यहाँ पर मैंने ग्राफ में बॉइलिंग पॉइंट का डेविएशन भी शो कर दिया है, फ्रीजिंग पॉइंट का डेविएशन भी शो कर दिया है। इट मीन्स आई एम शोइंग ऑल दोज थिंग लाइक डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, बट टुडे वी आर डिस्कसिंग ओनली ऑन दी आर लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। सो ग्राफ में भी हम वही समझेंगे। दिस इज अ ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। सी हियर, ये वेपर प्रेशर यहाँ और ये वाला यहाँ, ठीक है। ये जो पहली वाली लाइन दिख रही है ये प्योर वाटर की है, यानी कि पी नॉट ए। अब देखिए जैसे ही मैंने इसका सोल्यूशन बनाया तो ये यहाँ आ गया, यानी ये पी एस। आप देख रहे हैं यहाँ पर वाई एक्सिस पे पी ए की वैल्यू पी एस से ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, वही हमारा क्या है, डेल पी। और ये डेल पी हमारा क्या है, जैसे कि हमने पहले भी बताया, डेल पी है पी नॉट ए माइनस पी एस, ठीक है, यानी लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। Am I clear? If you are having any question, you can ask. Okay, you can comment in the comment box. I will give your answer. Now, सैम्पल प्रॉब्लम, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक सॉल्व एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पर, आप देखें। क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन मेड बाय डिजॉल्विंग 6.25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, यानी गिवन मास ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ है, ठीक है, इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। 50 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर हमने घोला उसे। हाउ मच वॉज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर वाटर लोवर्ड, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कितना कम होगा। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 23.82, यानी कि पी नॉट ए हमें गिवन है, हमसे पूछा है कि जो हमारा सोल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा। एम आई क्लियर, ओके। तो देखिए हमें ये भी पता है कि जो पी एस था वो क्या होता था, एक्स ए पी नॉट ए। पी नॉट ए मुझे पता है, एक्स ए मैं निकाल लूँ, एक्स ए क्या होगा, क्योंकि हमसे वाटर की बात करी है तो हमसे ऑब्वियसली वाटर का ही पूछा है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं मोल ऑफ वाटर, मोल ऑफ वाटर कितना है, मैंने पहले मोल निकाल लिया। वैसे गिवन मास दिख ही रहा है ना, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास 6.25 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का 180। इसी तरीके से यहाँ 50 और 18 2.78। अब क्योंकि मोल किसका निकालना है, वाटर का, तो फॉर्मूला लगाया, ये हुआ, हमने देख रहे हैं आप स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा 2.78, ठीक है, ये मोल वाटर का, प्लस 0.0347 प्लस, अब इसी में हमने प्लस कर दिया क्योंकि टोटल मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगा रहे हैं। हमारे पास आंसर आता है 0.988, ओके। सी हियर एंड लिसन, ये जो हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया, पी सॉल्यूशन पी एस इजिकल्स टू पी नॉट ए
एक्स से हम निकाल के आए, एक्स से कितनी थी हमारी 0.988, ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें दे ही रखी है। जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 23.5 टॉर। अब हमसे तो लोवरिंग पूछा है। लोवरिंग मतलब, लोवरिंग हमने अभी पढ़ा था, लोवरिंग होती है पी नॉट ए माइनस पी एस, ठीक है। तो जो आपने पी एस निकाला है उसको पी नॉट ए में से माइनस कर दीजिए, तो हमारे पास आंसर क्या है 0.2 टॉर। Am I clear student? Firstly we have to calculate the mole, ठीक है। After that we are calculating PS solution, then we are minus the PS from the P naught A, pure vapor pressure of component A. Okay, now see here, sometimes numericals में क्या होता है, हमसे वेपर प्रेशर ना पूछकर वो मॉलिकुलर मास भी पूछ सकता है। व्हाट इज द मॉलिकुलर मास, ठीक है, व्हाट इज द मॉलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट, ठीक है। तो सोल्यूट का मॉलिकुलर मास क्या है चीज़, ठीक है। बिकॉज देखिए जो मोल फ्रैक्शन टर्म है दैट इज द फ्रैक्शन ऑफ मोल, हमने पहले पढ़ा था मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो और मोल बनता है गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास से। तो यहाँ फॉर्मूले को उस तरीके से भी पूछा जा सकता है। देखिए ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ये तो रिलेटिव लोवरिंग इन प्रेशर। अब ये किसके बराबर होती है, हमने पढ़ा था एक्स बी के। एक्स बी मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ कॉम्पोनेंट बी। इट मीन्स टू से हम लिख सकते हैं एक्स बी को एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। एम आई क्लियर? 1 मिनट, ठीक है। हम ये लिख रहे थे, हमने कहा था एक्स बी इक्वल्स टू एन बी प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ओके, सो व्हाट इज एन बी? एन बी क्या है हमें पता है, एन बी क्या है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, गिवन मास। तो यही चीज़ मैंने यहाँ लिख रखी है, देखिए आप, ठीक है, और ये नीचे की तरफ यहाँ लिख दिए। अब एक बात ध्यान से सुने आप कि जब डिनोमिनेटर में दो टर्म्स आ जाती हैं और हमें पता है कि हम सोल्यूशन बना रहे हैं एंड वी नो वेरी वेल द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज वेरी लेस इन द सोल्यूशन, सो हम क्या करते हैं इस टर्म को नेग्लिजिबल मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो सोल्यूट वाली टर्म है डिनोमिनेटर में से नेग्लिजिबल मान लेते हैं, वहाँ केवल सॉल्वेंट की टर्म रहती है। तो इट्स बिकम्स दिस लाइक, ऐसे बन जाएगा, और फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमसे पूछा जाता है व्हाट इज द मॉलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं उस टाइम पर। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? देखिए यहाँ हर चीज़ टर्म क्या है, पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, पी ए वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, डब्ल्यू बी मास ऑफ सोल्यूट, डब्ल्यू ए मास ऑफ सॉल्वेंट, एंड एम बी क्या है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, एम ए मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक हम सिंपल सा एक क्वेश्चन देख के देखते हैं जो अभी हमने ऊपर पढ़ा। देखिए यहाँ मैंने आपको गिवन दे रखा है, क्वेश्चन नहीं दिया है, मैंने डायरेक्ट गिवन दे दिया। मैंने आपको डब्ल्यू बी दिया है, डब्ल्यू बी इट मीन्स टू से गिवन मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया है बच्चों 10 ग्राम, ठीक है 10 ग्राम। और यहाँ आप देखें डब्ल्यू ए जो मैंने आपको दिया है यानी कि गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट 200 ग्राम, पी ए दे दिया 32 mm Hg, पी ए यानी कि सॉल्यूशन पी एस वाला ही दे दिया। मैंने आपको कहा था पी एस हम किसके बराबर ले सकते हैं, पी ए के बराबर भी ले सकते हैं क्योंकि पी बी तो 0 है। ये मैंने आपको दे दिया, मुझे निकालना क्या है एम बी और एम ए मैंने आपको गिवन दिया है। तो देखिए फॉर्मूला लगाया मैंने पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए, ठीक है, एक्स बी के बराबर पूरा ये लिख दिया, ये टर्म मैंने नेग्लिजिबल कर दी है ना। अब मेरे पास ये चीज़ बन गई, मैंने सिंपल सा फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, आंसर मेरे पास आया 180 ग्राम मोल इनवर्स, क्योंकि मैं मॉलिकुलर मास निकाल दी हूँ। एम आई क्लियर स्टूडेंट? इसी तरीके से हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। देखिए दो न्यूमेरिकल बनते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पे। फर्स्ट दे विल आस्क द वेपर प्रेशर जो मैंने ऊपर करवाया था एग्जाम्पल, और सेकेंड मॉलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो यहाँ हमने सॉल्व करके देखा कैसे निकालते हैं, ठीक है। होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, ठीक है, subscribe our channel because you get all the notification of the new videos, and press the bell icon. Share this video to with your friends, okay, and thank you for watching.